हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल एंड हाई इन योर स्पिरिट्स। धर्म क्षेत्र पर आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड सिंस इट्स इंसेप्शन हम इसके कंट्रीब्यूशन एंड चैलेंजेस का एनालिसिस करेंगे कि जीएसटी जिस पर्पस से इंट्रोड्यूस किया गया था इस पर्पस पे ये कितना सक्सेसफुल रहा है एंड कितना ये अभी भी एग्जिस्टिंग चैलेंजेस हैं। क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ जीएसटी या फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ जीएसटी, ऐसी कोई भी बात आती है, दिस कंटेंट इज रिलेवेंट फॉर यू। These are the pillars on which we are going to discuss the entire class. We will introduce GST with constitutional basis and we will discuss key structural features of GST. And these two are important for prelims part also. These two are important for PT 2026 part also. And after that we will discuss what has been successes and contribution of GST since its inception. And उसके बाद देखेंगे कि what are the existing limitations and corresponding to these limitations we will discuss excuse me, we will discuss certain key commission recommendation, जैसे कि we will discuss what finance commission has suggested, RBI Rangarajan committee, even 19th PAC report 2023 में आई थी, that's why this topic is very important for us, right? If not, this means this working of GST is a constitutional and its entire constitutional basis and its overall performance, ये हमेशा आपके लिए एक important topic रहेगा, whether this month or next month. So do follow these classes. So first of all, let's start with the introduction of GST. First of all, हम GST को इंट्रोड्यूस करेंगे एंड देन विल मूव टू कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस. सो अगर आपको GST को इंट्रोड्यूस करना है, सो यू विल राइट, सी द जो कीवर्ड्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये कीवर्ड्स मेरे बनाए नहीं है, कीवर्ड्स आपके बनाए नहीं है, कीवर्ड्स गवर्नमेंट की है जो GST को कैरेक्टराइज करती है. जैसे कि इंडियन प्रीएम्बल आप पढ़ेंगे, देन रिपब्लिक के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, राइट? आवर रिपब्लिक हैज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड देन रिपब्लिक. सो ये हमने नहीं बनाया, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे रिपब्लिक को दिए, राइट? इन द सेम वे, और हमें इनको एज सच पढ़ना है. इन द सेम वे ये जो कीवर्ड्स हैं, these keywords basically are the definition of GST, key defining structure of GST, key defining feature of GST, जो कि GST को बिल्कुल बोले कि एकदम से जो की पॉइंट्स है गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन है, वो ये डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आई विल बेग योर पार्डन, मैं थोड़ा सा शायद ऑफ हूँ बिकॉज ऑफ सर्टेन इशूज, सो दैट्स वाई आई माइट बी फम्बलिंग इन बिटवीन. सो शायद क्लास में थोड़ा फ्लो नहीं आएगा बिकॉज ऑफ ongoing issues and stresses of the life, so but still the show must go on. So let's start the introduction part and we will introduce GST as a, what is GST? GST is a comprehensive destination based indirect tax. What is, आपको याद होना चाहिए GST क्या है? एक comprehensive, the first feature is it is a comprehensive. Secondly, remember destination based indirect tax है GST. Why it is comprehensive? Because it subsumes a wide range of central and state taxes into a सिंगल यूनिफाइड टैक्स सिस्टम. आप इसको ऐसे भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि GST इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डेस्टिनेशन बेस्ड सिंगल यूनिफाइड टैक्स सिस्टम which was implemented in India on 1st July 2017 and the purpose is to streamline the indirect tax structure and promote a common national market. This ये आप definition briefly include कर सकते हैं that GST is a comprehensive destination based single unified tax system which was implemented on 1st July 2017 for streamlining the indirect tax structure and promoting a common national market. So this is the introduction of GST. Why it was introduced? To streamline the indirect tax structure and जो common national market का concept है इसको promote करना
एंड जीएसटी का सबसे की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी कैसा टैक्स है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो इट इज अ ये पता होगा आपको, इनडायरेक्ट टैक्स है एंड इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड। हम आगे जब फीचर्स डिस्कस करेंगे विल रिवाइज व्हाट इज मींट बाय डेस्टिनेशन बेस्ड। Let's come to constitutional basis of GST. So remember 101st Amendment, it is a landmark amendment of our constitution. The 101st Amendment of 2016 gave the constitutional basis of GST. अब आपसे in prelims पूछा जा सकता है कि 101st Amendment ने constitution के किन किन parts को चेंज किया गया था। थ्रू 101st अमेंडमेंट व्हाट आर द चेंजेस दैट वर ब्रॉट अबाउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो रिमेंबर दैट 101st अमेंडमेंट जनरली पीपल लोग आर्टिकल 279 ये तो याद रखते हैं, बट आर्टिकल 246 से नहीं याद नहीं रखते, राइट। सो याद रखेंगे कि एक आर्टिकल 101st अमेंडमेंट से पहली चेंज जो हुई थी that it empowered both parliament and state legislature after 101st amendment. parliament और state legislature दोनों, parliament और state legislature दोनों जीएसटी पे लॉज बना सकते हैं। एंड इसी के कंटिन्यूटी में आर्टिकल 246 से इंसर्ट किया गया था एंड दिस ग्रांटेड कंकरेंट पावर्स ऑन टू द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर लेविंग जीएसटी, राइट। सो याद रखेंगे वी हैव कंकरेंट लेजिस्लेटिव पावर and concurrent legislative power and concurrent executive power. Remember टैक्स लेवी करना ये एग्जीक्यूटिव की प्रेरोगेटिव है, याद रखेंगे आप, टैक्स एग्जीक्यूटिव, टैक्स लेवी करना एग्जीक्यूटिव की प्रेरोगेटिव है, बट हर टैक्स जो है बैक्ड होना चाहिए बाय ए लॉ इनेक्टेड बाय लेजिस्लेचर। टैक्स लगाना किसकी प्रेरोगेटिव है, किसकी अथॉरिटी है, एग्जीक्यूटिव की, राइट। बट हर टैक्स जो एग्जीक्यूटिव लगाता है उसके पीछे एक लेजिस्लेटिव बैकिंग होना चाहिए, और लेजिस्लेटिव बैकिंग कौन देगा, सेंटर में पार्लियामेंट एंड स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर। सो अगेन 101st अमेंडमेंट एक्ट से कंकरेंट लेजिस्लेटिव पावर मिला पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर को जीएसटी के लिए लॉ इनैक्ट करने के लिए, एंड साइमल्टेनियसली आर्टिकल 246 से इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड इस आर्टिकल 246 ए में कंकरेंट एग्जीक्यूटिव पावर दिया गया यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट दैट बोथ गवर्नमेंट्स कैन लेवी जीएसटी। बिसाइड्स दैट आर्टिकल 279 ए भी इंट्रोड्यूस किया गया। बिसाइड्स आर्टिकल 246 से आर्टिकल 279 ए भी इंट्रोड्यूस किया गया, और ये आर्टिकल 279 क्या करता है, दिस आर्टिकल 279 ने प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जीएसटी काउंसिल। सो जीएसटी काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, आर्टिकल 279 ए। सो आर्टिकल 279 ने प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जीएसटी काउंसिल, एंड जीएसटी, व्हाट इज जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल इज द की डिसीजन मेकिंग ऑफ द इंटायर जीएसटी का जो भी गवर्नेंस का फ्रेमवर्क है उसमें जीएसटी काउंसिल इज द की डिसीजन मेकिंग ऑफ द जीएसटी। एंड साथ ही साथ बिसाइड्स दिस इंडक्शन ऑफ न्यू आर्टिकल्स 246A एंड 279A, 7th शेड्यूल के बहुत सारे इंट्रीज में अमेंडमेंट किया गया। सम इंट्रीज हैज बीन डिलीटेड, सम इंट्रीज हैज बीन चेंज्ड, अमेंडेड, एंड कुछ नए इंट्रोड्यूस किए गए ताकि 7th शेड्यूल रीअलाइन हो सके टैक्सेशन पावर से। सो डू रिमेंबर 246 से 279 है, एंड certain repeal and amendment in the different entries of the 7th schedule. So these are the changes brought about by 101st constitutional amendment. ये आप याद रखेंगे। So we have discussed introduction of GST and constitutional basis. Now we are moving to key structural features of the goods and services tax. Now we are moving to, अब हम देखेंगे कि GST के what are the structural features of GST, what are the features of GST, and this is very important for, यहाँ जो भी हम facts discuss करेंगे these are important for prelims exam और state PCS exam। अगर mains में simple GST के features discuss करने आते हैं, 10 markers में आते हैं, तो आप ये जो भी हमने points यहाँ पे 10 point discuss किए आप लिख देंगे, you will get a very good mark। अगर critical analysis आता है तो इसके बाद हम critical analysis पे ही चलेंगे। So सबसे पहला फीचर है जीएसटी का, वो है डुअल जीएसटी मॉडल।
राइट। डुअल जीएसटी मॉडल मतलब कि जहाँ पे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस लेवी करते हैं सेम ट्रांजैक्शन पे। डुअल जीएसटी मॉडल मीन्स दो अथॉरिटी है, डुअल मीन्स दो अथॉरिटी है जो कि सेम ट्रांजैक्शन पे टैक्सेस लेवी करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है सीजीएसटी, आपको पता है, स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है स्टेट जीएसटी, एंड इंटर स्टेट सप्लाई की जब बात आती है, इंटर स्टेट कमर्स की बात आती है वहां पे आईजीएसटी लेवी होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है। याद रखेंगे आप। सो पहला की फीचर क्या है? डुअल जीएसटी मॉडल। डुअल जीएसटी मॉडल ऑन द सेम ट्रांजैक्शन। आप जो ट्रांजैक्शन करते हैं, आप जो सर्विसेज एक्सपीरियंस करते हैं उस पर आप जो जीएसटी पे करते हैं उसमें अगर आप ध्यान देंगे तो उसमें सीजीएसटी भी है और एसजीएसटी भी है, राइट। सो डुअल जीएसटी मॉडल, दैट इज on the same transaction there are two authorities that are levying taxes simultaneously, center CGST, state SGST. Now second feature is destination based taxation. हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि जीएसटी क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम है। सो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन मतलब क्या कि जीएसटी, कभी भी जीएसटी वो कहाँ लगता है? डेस्टिनेशन, यानी किसी सर्विस का, किसी प्रोडक्ट का जहां पे कंजम्पशन हो रहा है वहां पे जीएसटी लेवी होता है, ना कि ओरिजिन पे, राइट। सो जीएसटी क्या है? जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम है जिसमें टैक्स लेवी कहाँ पे किया जाता है? ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का एक प्लेस ऑफ ओरिजिन होगा और इस प्रोडक्ट का एक प्लेस ऑफ कंजम्पशन होगा। सो याद रखेंगे जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम, यानी टैक्स कहाँ लगता है? प्लेस ऑफ ओरिजिन पे नहीं, टैक्स कहाँ लगता है? पॉइंट ऑफ कंजम्पशन पे। याद रखेंगे। पर्पस क्या है इसका? पर्पस है कि ये इंश्योर किया जाए कि इस पूरे टैक्सेशन प्रोसेस में रेवेन्यू उस स्टेट को जाए जहां पे गुड्स कंज्यूम हो रहे हैं, ना कि गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर जहां ना कि उस स्टेट में जहां पे गुड्स का ओरिजिन है। यानी एक इंटेंशन है जीएसटी के अंदर कि कंजम्पशन को भी प्रमोट करना है, राइट। यानी कंजम्पशन प्रमोट होगा तो क्या होगा? रेवेन्यू जनरेशन भी प्रमोट करना है। So the first feature is dual GST. Second, GST is a destination based taxation. Third important feature is that it provides comprehensive coverage. Comprehensive coverage कैसे? कि GST जो most of the pre-GST era में existing indirect taxes थे, indirect taxes याद रखेंगे, not direct taxes. in pre-GST era में जो most of the इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उन सबको कंज्यूम कर लेता है। जैसे आपका हो गया एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रोई एक्सेट्रा, ये सारे सब्ज्यूम कर लेते हैं। ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो प्री जीएसटी एरा में लगते थे। ये और भी हैं जो कि आपके स्क्रीन पे यही दिख रहे होंगे। सो इन सबको सब्ज्यूम करके एक कंप्रीहेंसिव एक स्ट्रक्चर बनाया गया जिसको जीएसटी बोला गया। इसीलिए जीएसटी को कंप्रीहेंसिव टैक्सेशन भी कहते हैं। हमने यहाँ पे वर्ड मोस्ट यूज किया है, नॉट ऑल यूज किया है, तो कुछ है जो बाहर है, दैट इज देयर, ये लैकुना है, हम इश्यूज में देखेंगे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट फीचर जीएसटी का है दैट इट प्रोवाइड्स मल्टी रेट स्ट्रक्चर। दैट इज जीएसटी में मल्टीपल टैक्सेशन स्लैब है। जीएसटी में क्या है? मल्टीपल टैक्सेशन स्लैब है, 0, 5, 12, 18 एंड 28% डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जिस टाइप के आप गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, अलग अलग उन सर्विसेज, अलग अलग गुड्स पे अलग अलग उनको कैटेगराइज किया गया है एंड उन पे टैक्सेशन है। तो बेसिकली यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है, मल्टी रेट टैक्स स्ट्रक्चर है जीएसटी का। Now coming to one of the most important feature of GST जो आपको समझना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है? यू शुड नो। सो देखिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट बेसिकली एक मैकेनिज्म है जहाँ पे जहाँ पे जीएसटी स्ट्रक्चर में ये
प्रोवाइड किया गया है कि बिजनेसेस अपने जो टैक्सेशन पे कर रहे हैं जीएसटी को ओवरऑल ऑफसेट कर सकते हैं। यानी जो वो जो जब वो इनपुट परचेज करते हैं वहां पे जो टैक्स पे करते हैं, राइट, और उसके बाद उन्होंने जो सर्विस प्रोड्यूस किया या फिर जो उन्होंने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, और इस प्रोडक्ट या सर्विस पे जो उनको टैक्स मिलता है, जो आप सर्विस या प्रोडक्ट टैक्स पे करते हैं, यानी वो, ठीक है, एज ए कंज्यूमर। यहाँ पे देखिए एक बिजनेस है, उसने कुछ इनपुट बोरो किया, इनपुट बाई किया, इस इनपुट पे उसने टैक्स पे किया गवर्नमेंट को, राइट। अब इस इनपुट को लेकर के इस बिजनेस ने कुछ सर्विस या प्रोडक्ट लॉन्च किया। अब कंज्यूमर इस सर्विस या प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करते समय क्या करता है, जीएसटी पे करता है यानी टैक्स पे करता है। तो ये जो कंज्यूमर ने टैक्स पे किया, ये सारा का सारा टैक्स गवर्नमेंट के पास नहीं चला जाता। यहाँ पे जो इस बिजनेस ने टैक्स पे किया था, इसको इस कंज्यूमर ने जो जीएसटी पे किया है इसके साथ बैलेंस करके जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है ये जाती है गवर्नमेंट को। सो इसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। दैट इज businesses can claim credit for taxes paid on inputs, reducing cascading effects and improving tax compliance। यानी जो businesses हैं जीएसटी अलाउ करती है इनपुट टैक्स क्रेडिट के फॉर्म एक मैकेनिज्म जहां पे businesses जीएसटी को ऑफसेट कर सकते हैं उस टैक्स से जिन्होंने जो उस टैक्स से ऑफसेट कर सकते हैं जिन्होंने परचेज पे इनपुट एज ए इनपुट पे किया है। एंड I'm extremely sorry. I have already said that I might fumble because anyways. So I hope ये ITC clear होगा. Now coming to GST Council. So GST Council एक constitutional body है under Article 279 है, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल जीएसटी काउंसिल एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। इस जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 279 है, जिसमें यूनियन फिनेंस मिनिस्टर इस बॉडी को चेयर करते हैं। इन सारे स्टेट के फिनेंस मिनिस्टर्स इसके मेंबर्स होते हैं। एंड दिस काउंसिल डिसाइड्स जीएसटी डिफरेंट टैक्स रेट्स, क्या टैक्स रेट्स होंगे, क्या एग्जामिशंस होंगे एंड क्या फ्रेमवर्क होगा जीएसटी का, ये काउंसिल रिस्पॉन्सिबल है डिसाइड करने के। सो जीएसटी काउंसिल is one of the key feature governing body of the GST. Next we have GST network. So GST network is a one-stop solution. GST network is a one-stop solution, one-stop portal. It is a official online portal जहाँ पे सारे goods and services tax related activities इंडिया में देखे जाते हैं। It is गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जीएसटी से रिलेटेड सारे एक्टिविटीज यहाँ पे जीएसटी पोर्टल पे देखे जाते हैं। बेसिकली इट इज ए आईटी टेक्नोलॉजी, जीएसटीएन क्या है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन आईटी बैकबोन है जहाँ पे ई रजिस्ट्रेशन, ई फिलिंग, टैक्स पेमेंट, ये सारी चीजें की जाती है। यानी वन स्टॉप ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जीएसटी से रिलेटेड सारे एक्टिविटीज का इन द इंटायर इंडिया। नेक्स्ट दिस जीएसटी प्रोवाइड्स यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर्स। जीएसटी लॉ एंड प्रोसीजर्स टैक्स में टैक्स रिलेटेड लॉज एंड प्रोसीजर्स में यूनिफॉर्मिटी भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि जो स्ट्रक्चर है जीएसटी का, ये स्ट्रक्चर डिफरेंट टैक्स लॉज है अक्रॉस द कंट्री को उनको हार्मोनाइज करता है बाय रिप्लेसिंग मल्टीपल ओवरलैपिंग एंड इनकंसिस्टेंट स्टेट टैक्स लॉ। अलग अलग स्टेट्स में ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट्स के एंट्री पे अलग अलग एक्साइज ड्यूटी लगना, फिर उन्हीं एक्साइज ड्यूटी पे वैट लगना, ऑक्ट्रोई, अब पंचायत में एंट्री के लिए आप ऑक्ट्रोई पे कर रहे हैं। सो इन सबको हटा करके, जो कि ये सारे जो टैक्सेस के मैंने नाम लिए ये सारे अलग अलग स्टेट्स में वेरी करते थे। सो बेसिकली ये जो वेरिएशन था स्टेट लेवल पे, पंचायत लेवल पे, इन सबको हटा करके जीएसटी एक हार्मोनाइज्ड टैक्स स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए, जहाँ पे सारे स्टेट्स में, डिफरेंट स्टेट्स में अगर एंट्री के टैक्स लग रहे हैं प्रोडक्ट्स के तो वो यूनिफॉर्म होंगे।
पंचायत में अगर टैक्सेशन लग भी रहा है तो यूनिफॉर्म हो, राइट? So remember this. By virtue of this GST structure provides uniformity in law. Again, this GST provides e-way bill and invoicing mechanism, right? E-way bill and e-invoicing mechanism through GST. So गुड्स के थ्रू आउट, क्योंकि ये एक यूनिफाइड मार्केट बनाने की प्रपोजल करता है जीएसटी. सो गुड्स के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए एंड ट्रांसपेरेंसी को इन्हांस करने के लिए जीएसटी ने ई-वे बिल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग इंट्रोड्यूस किया है, नॉट फॉर ऑल बिजनेसेस अबव अ सर्टेन थ्रेशोल्ड एंड दिस थ्रेशोल्ड इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ मनी. यानी ऐसा नहीं है कि सारे बिजनेसेस को ई इनवॉइसिंग ही जनरेट करना है, ई वे बिल करना है, नहीं. एक मिनिमम थ्रेशोल्ड सेट किया गया, इससे ऊपर का अगर आपका बिजनेस है then you have to generate e-way bills and electronic invoicing for maintaining transparency in the system. And lastly, we have anti-profiteering mechanism in GST. Basically, anti-profiteering क्या होता है? So, see, there is a government at the top and बीच में सर्विस प्रोवाइडर्स हैं एंड सबसे नीचे कंज्यूमर्स हैं, राइट? ये सर्विस प्रोवाइडर्स इंटरमीडिएट्स हैं. ये हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमसे टैक्स लेते हैं एंड गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं. बट टैक्सेस जो है वो हमेशा रिजिड नहीं है, दीज आर फ्लेक्सिबल. यानी टैक्स रेट्स में कभी रिडक्शन होगा, कभी इंक्रीज होगा. तो बेसिकली एंटी प्रॉफिटियरिंग का मतलब होता है कि जब भी गवर्नमेंट ये चाहती है कि जब भी टैक्सेस में रिडक्शन हो, यानी इनपुट कॉस्ट में रिडक्शन हो, तो ये जो बीच में जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं यानी बिजनेसेस हैं, इन पे जो प्रॉफिट जा रहा है उसी के प्रोपोर्शन में ये प्रॉफिट जो है कंज्यूमर तक भी ट्रांसलेट करें. यानी अगर इनके ओवरऑल प्रोडक्शन में, यानी इनपुट ओवरऑल प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो कम हो रहा है गवर्नमेंट के किसी टैक्स रेट को रिडक्शन में, तो वो ये जो इनका जो ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट कमा है, यानी इनको जो प्रॉफिट हुआ है, उसका एक प्रोपोर्शनल वे में ओवरऑल कंज्यूमर के पास भी बेनिफिट पहुंचे. एंड कंज्यूमर के पास बेनिफिट कैसे पहुंचेगा? थ्रू रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो दिस इज कॉल्ड एज एंटी प्रॉफिटियरिंग. एंड प्रॉफिटियरिंग क्या होता है? जहां पे गवर्नमेंट टैक्स तो रिड्यूस कर रही है, लेकिन ये बीच के इंटरमीडिएट यानी बिजनेसेस या सर्विस प्रोवाइडर्स ही तक रह जाता है, ये नीचे कंज्यूमर्स तक ट्रांसलेट नहीं होता है. सो दिस इज कॉल्ड एज प्रॉफिटियरिंग. बट अगर ऐसा मैकेनिज्म है जहां पे जैसे जैसे गवर्नमेंट टैक्स रेट्स में फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रही है, वो फ्लेक्सिबिलिटी बिजनेसेस से होकर के कंज्यूमर्स तक एक प्रोपोर्शनल वे में पहुंचता है, दिस इज नोन एज एंटी प्रॉफिटियरिंग. सो इसको इंश्योर करने के लिए जीएसटी में ना एस्टेब्लिश किया गया नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी. और याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है प्रॉफिटियरिंग का कंसेप्ट, एंटी प्रॉफिटियरिंग का कंसेप्ट. और याद रखेंगे कि एंटी प्रॉफिटियरिंग एक स्टैट्यूटरी ना जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. एंड इफ आई एम फैक्चुअली करेक्ट, जो कि मुझे डाउट है, मैं अभी नहीं हो सकती, तो सेक्शन 117 ऑफ CGST एक्ट के अंदर ये नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी एस्टैब्लिश की गई है. आप एक बार सेक्शन देख लेंगे. एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर फंबलिंग, जो मैं आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को एक्सप्लेन कर रही थी. हालांकि हमने फर्स्ट इंस्टांस में समझ लिया था कि बिजनेसेस जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं यानी इनपुट खरीद रहे हैं और इस पे जो टैक्स वो पे कर रहे हैं, और इस इनपुट से वो एक सर्विस बना करके कंज्यूमर्स को पे करें, और कंज्यूमर्स यहाँ पे जीएसटी पे करती है. तो ये जो इनपुट टैक्स है और जीएसटी पहले बिजनेस के पास जाता है. तो बेसिकली बिजनेसेस यहाँ पे ऑफसेट कर लेते हैं, यानी जीएसटी जो कंज्यूमर पे कर रही है माइनस उन्होंने इनपुट टैक्स जो उन्होंने पे किया, और ये ऑफसेट करने के बाद फिर वो गवर्नमेंट को फाइनल मनी या सम जो बचता है, रेस्ट मनी सम, वो गवर्नमेंट के पास जाती है. दिस इज नोन एज इनपुट टैक्स क्रेडिट. सो जब मैं पहली दफा एक्सप्लेन करना शायद चाह रही थी, मैं फंबल हो गई, आई बेग योर पार्डन. चलिए, सो ये 10 हमने स्ट्रक्चरल फीचर्स जीएसटी के डिस्कस किए.
अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द सक्सेसेस एंड एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी सिंस इट्स इंसेप्शन। जब से जीएसटी 1 जुलाई 2017 को जीएसटी का इंसेप्शन हुआ था, इफेक्चुएशन हुआ था, सो उसके बाद से जीएसटी का कैसा परफॉर्मेंस रहा। सक्सेस के जगह पे परफॉर्मेंस भी कह सकते हैं आप, कंट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं आप, पॉजिटिव कुछ भी कह सकते हैं, यही आपको लिखना है। सबसे पहला आप डिस्कस करेंगे कि क्रिएशन, फर्स्ट सक्सेस और कंट्रीब्यूशन इज क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड यूनिफाइड नेशनल मार्केट। कैसे? बाय एलिमिनेटिंग इंटरस्टेट बैरियर्स, बाय एलिमिनेटिंग इंटरस्टेट बैरियर्स टू ट्रेड। कैसे? हमने देखा कि डिफरेंट स्टेट्स में एंट्री के लिए, गुड्स के मूवमेंट के लिए एक्साइज ड्यूटी लगता था। एंड इस स्टेट, मान लीजिए ये बिहार है, इसमें कुछ गुड्स इंटर करने हैं, किसी बाहर के स्टेट से इंपोर्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे बॉर्डर पे हम एक्साइज ड्यूटी पे करते थे। एंड इस बिहार के अंदर डिफरेंट पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज में इंटर करते हैं तो हम ऑक्ट्रोई पे करते थे। तो आप समझिए कि कितने अलग अलग, एक ही स्टेट में एक ही प्रोडक्ट पे कितनी बार टैक्सेस लग रहा है। और एक्साइज ड्यूटी बिहार का अलग हो सकता है, दिल्ली का अलग हो सकता है, बॉम्बे का अलग होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ना ही तो कोई हार्मनी थी टैक्सेस में, और ना ही मल्टीपल लेवल्स पे टैक्स लग रहे थे, राइट। इसको कैस्केडिंग इफेक्ट भी कहते हैं, इसी को कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। सो जीएसटी ने इन सबको एलिमिनेट करते हुए एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट क्रिएट किया है बाय एलिमिनेटिंग इंटरस्टेट बैरियर्स। और कैसे एलिमिनेट किया है? GST has subsumed multiple taxes like octroi, entry tax and etc. अब इसका बेनिफिट क्या हुआ है कि जो ई-वे बिल्स हमने देखा, जो जीएसटी में एक मैकेनिज्म है, ई इनवॉइसिंग मैकेनिज्म एंड ई-वे बिल्स सर्टेन थ्रेशोल्ड से ऊपर, आपको इन ई-वे बिल्स की वजह से ये हुआ है कि सिमलेस लॉजिस्टिक्स मूवमेंट को इंश्योर कर पाए हैं। एंड डिफरेंट स्टेट्स में ट्रक ट्रेवल टाइम का जो ओवरऑल है वो 20% ड्रॉप हुआ है, राइट। सो ओवरऑल सप्लाई चेन एफिशिएंसी इंप्रूव हुआ है। सो दिस हैज बीन अचीव्ड बिकॉज ऑफ अ यूनिफाइड नेशनल मार्केट। और ये कैसे हुआ है? बिकॉज ऑफ जीएसटी। सेकेंड एडवांटेजेस और कंट्रीब्यूशन की इंक्रीज्ड टैक्स बेस एंड फॉर्मलाइजेशन। इंक्रीज्ड टैक्स बेस एंड फॉर्मलाइजेशन मीन्स वैसे इकोनॉमीज, वैसे बिजनेसेस जो गवर्नमेंट की नजर में नहीं थी, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं था, वो सारे रजिस्टर्ड है। एंड बिकॉज दे आर रजिस्टर्ड, अब क्योंकि अब वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का मामला है तो दे आर रजिस्टर्ड, एंड बिकॉज दे आर रजिस्टर्ड तो टैक्स बेस भी हमारा इंक्रीज हुआ है। यू विल से कि जीएसटी की वजह से टैक्स रजिस्ट्रेशन में सिग्निफिकेंट राइज देखने को मिला है। एंड यू विल गिव एग्जांपल कि अगर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 को देखें तो जो नंबर ऑफ जीएसटी टैक्स पेयर्स हैं ये 1.4 करोड़ क्रॉस कर गए हैं एज कंपेयर टू 65 lakhs प्री जीएसटी एरा के कंपैरिजन में 23-24 में जो नंबर ऑफ जीएसटी टैक्स पेयर्स हैं ये ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं, राइट। सो इसको आप लिख देंगे। एंड ये अगेन जो फॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है कि बहुत सारे एमएसएमईज तो फॉर्मल इकोनॉमी में इसलिए इंटर हुए हैं बिकॉज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इंसेंटिव। यानी आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसके लिए जो आप इनपुट ले रहे हैं, और इस इनपुट के परचेज से जो आप आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस फॉर्मलिंग, इनपुट के परचेज पे जो आप टैक्स पे कर रहे हैं, इसको आप ऑफसेट कर सकते हैं। किससे? इस इनपुट से जो आप प्रोडक्ट बनाएंगे और उस प्रोडक्ट को आप सेल करेंगे, और इस प्रोडक्ट पे जो आपको जीएसटी मिलेगा, इस टैक्स को आप ऑफसेट करके और फिर आप गवर्नमेंट को टैक्स, जो बचा सम है वो गवर्नमेंट को जाएगा। सो बेसिकली इस इनपुट टैक्स क्रेडिट इंसेंटिव की वजह से बहुत सारे एमएसएमईज फॉर्मल इकोनॉमी में आए हैं। सो जीएसटी हैज लेड इंक्रीज्ड टैक्स बेस एंड फॉर्मलाइजेशन, दोनों हमने एक्सप्लेन कर दिया कैसे टैक्स बेस इंक्रीज हुआ है। प्री जीएसटी एरा से 23-24 तक करें तो जो नंबर ऑफ जीएसटी टैक्स पेयर्स है, इनका जो नंबर है ऑलमोस्ट ट्वाइस हो गया, 1.4 करोड़ क्रॉस कर चुका है।
और हमने MSME का भी एग्जाम्पल दे दिया. सो थर्ड कंट्रीब्यूशन, थर्ड एडवांटेज ऑफ GST इज स्टीडी ग्रोथ इन रेवेन्यू कलेक्शन. जब से GST का इंसेप्शन हुआ है, इफेक्चुएशन हुआ है, ये देखने को मिला है कि जो रेवेन्यू कलेक्शन है ये इसमें स्टीडी ग्रोथ देखने को मिला है. यू विल से कि मंथली GST रेवेन्यू में कंसिस्टेंटली ग्रोथ देखने को मिला है ओवर द ईयर. एंड यू विल से आप एक महीने का एग्जांपल, ये एक महीने का एग्जांपल है, आप इसको अवॉइड करेंगे, आप ट्रेंड देंगे. इस फैक्ट को कोट कर सकते हैं कि 2017 और 2024 यानी ऑलमोस्ट ये 2023-24 का डाटा होगा, यानी 6 इयर्स, राइट. 2017 टू 23 यानी 6 इयर्स में अगर आप एवरेज मंथली GST कलेक्शन को देखेंगे तो जो 2017 में 90 करोड़ था, 23 में ये 1.68 लाख करोड़ है. और ये सम जो है क्या है, एवरेज मंथली GST कलेक्शन है. सो एक स्टीडी ग्रोथ देखने को मिला है रेवेन्यू कलेक्शन में. अगर सिर्फ एक महीने की बात करें तो अप्रैल 2024 एक रिमार्केबल मंथ है, क्योंकि यहाँ पे एक रिकॉर्ड कलेक्शन देखने को मिला था 2.10 लाख करोड़. सिर्फ एक महीने में GST कलेक्शन देखने को मिला था बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन एंड improved compliance. So after GST we have seen steady growth in revenue collection and हमने एक ट्रेंड दिखा दिया कि कैसे 2017 से 23 तक एवरेज मंथली GST कलेक्शन 90,000 करोड़ से बढ़ के 1.68 लाख करोड़ तक पहुंच गया है. नेक्स्ट वी विल सी नेक्स्ट बेनिफिट, नेक्स्ट परफॉर्मेंस की रिडक्शन इन कैस्केडिंग टैक्सेशन, दैट इज टैक्स ऑन टैक्स. हमने अभी समझ लिया था टैक्स ऑन टैक्स क्या है, एक्साइज ड्यूटी और ऑक्ट्रॉय के माध्यम से. एंड ये इसका ये कैसे रिड्यूस हुआ है, कैस्केडिंग टैक्सेशन, इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से कैस्केडिंग टैक्सेशन को हमने रिड्यूस किया है. इसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट में भी रिडक्शन देखने को मिलता है. जब अब मान लीजिए ये ट्रक है, ये ट्रक कोई गुड लेकर के बिहार में एंट्री करना चाहती है, दिल्ली में एंट्री करना चाहती है. अब यहाँ पे इसको एक्साइज ड्यूटी देना पड़ेगा. अगर यहाँ एंट्री करने के लिए और इस प्रोडक्ट को मान लीजिए यहाँ पर ला करके थोड़ा इसको पॉलिश, यानी दिल्ली के टेरिटरी में ला करके पॉलिश करना है तो आपको वैट लगेगा. अब राइट, अब इसके बाद अगर ये डिफरेंट लोकल बॉडीज के टेरिटरी में घुसेगी तो ऑक्ट्रोई लगेगा. आपको दिख रहा है, ये जहाँ पे मैन्युफैक्चर हुई होगी वहां पे इनपुट कॉस्ट लगा होगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बाहर निकलने के बाद एक टैक्स लगा होगा. सो देख रहे हैं एक ही प्रोडक्ट पे कितनी दफा टैक्स लग रहा है. सो इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट और इसको बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स, राइट. सो GST की वजह से कैस्केडिंग टैक्सेशन रिड्यूस हुआ है. और क्यों? इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से. और क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म है तो ओवरऑल कॉस्ट है जो प्रोडक्ट का वो भी रिड्यूस हो जाता है, राइट. सो एग्जाम्पल जैसा हमने भी देखा कि पहले एक्साइज ड्यूटी पे वैट भी लेवी होता था. सो GST ने इस तरह की एफिशिएंसीज को रिमूव कर दिया. फिफ्थ एडवांटेज, बूस्ट टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, राइट. यूनिफाइड टैक्स रेट्स हैं थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया किसी प्रोडक्ट के लिए. एंड ऑनलाइन GST पोर्टल है. ऑनलाइन GST पोर्टल क्या, एक सिंगल यूनिफाइड ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है GST रिलेटेड सारे मसलों के लिए. इससे क्या हुआ है, कंप्लायंस बर्डन रिड्यूस हुआ है. कंप्लायंस बर्डन रिड्यूस होगा, चीजें स्मूथ होंगी, स्ट्रीमलाइन होंगी, ऑनलाइन होंगी, तो हार्मोनाइज्ड होंगी, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा. आप एग्जांपल देंगे कि देखिए वर्ल्ड बैंक की 2020 रिपोर्ट आई थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की. वहां पे वर्ल्ड बैंक ने GST को एक की रिफॉर्म की तरह साइट किया था अंडर पेइंग टैक्सेस पैरामीटर, राइट. 2020 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, वहां पे वर्ल्ड बैंक ने GST को एक की रिफॉर्म की तरह मेंशन किया था अंडर पेइंग टैक्सेस पैरामीटर. एंड दिस इज ह्यूज, दिस इज अ बिग थिंग, नॉट अ स्मॉल थिंग, राइट. एंड लास्टली यू विल कोट कि GST हैज also cooperated in improving or strengthening cooperative federalism through GST Council.
improving cooperative federalism through GST Council. So how? Because post GST, post its inception through 279 GST काउंसिल एक प्लेटफॉर्म, सेंटर स्टेट कोलाबोरेशन के का प्लेटफॉर्म बन गया है। किस चीज में कोलाबोरेट कर रहे हैं? टैक्सेशन के मसले में। आप एग्जांपल दे सकते हैं कि देखिए कोविड-19 के दौरान किस तरह से सेंटर और स्टेट ने मिलकर कोलाबोरेट करके जो हेल्थ रिलेटेड क्राइसिस है और उससे रिलेटेड हेल्थ रिलेटेड गुड्स है उन पे ज्वाइंट टैक्सेशन डिसीजंस लिए थे कि किन हेल्थ रिलेटेड गुड्स है जैसे कि ऑक्सीजन, वैक्सीन, इस पे कितना टैक्सेशन लगेगा, टैक्स एग्जम्पशन होगा तो क्या होगा। ये दोनों सेंटर और स्टेट मिलकर जीएसटी काउंसिल के बैनर के तले इन्होंने डिसाइड किया। सो जीएसटी काउंसिल हैज बिकम ए प्लेटफॉर्म फॉर सेंटर स्टेट कोलैबोरेशन ऑन टैक्स रिलेटेड मैटर, और आपने एक एग्जांपल भी दे दिया। सो दीज आर द सक्सेसेस और कंट्रीब्यूशन और एडवांटेजेस और परफॉर्मेंस ऑफ जीएसटी सिंस इट्स इंसेप्शन। हमने कंट्रीब्यूशन देखा, काफी हद तक हम सक्सेस है, बट हम देखेंगे कि कुछ इश्यूज भी हैं, कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, कुछ फंक्शनल इश्यूज हैं, राइट? तो भी हम देखेंगे। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्ट्रक्चरल इशू आता है कि हमने देखा कि एडवांटेजेस यही है कि फ्लेक्सिबिलिटी, यानी वी हैव मल्टी रेट स्ट्रक्चर, बट ये मल्टी रेट स्ट्रक्चर की वजह से बहुत सारी कम्प्लेक्सिटी आ रही है। एंड ये कम्प्लेक्सिटी कुछ इस तरह से है कि दिस ये मल्टी रेट स्ट्रक्चर हमारे पास 5 स्लैब है जीएसटी में, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ओवरऑल सिस्टम जो है कम्प्लेक्स हो जा रहा है, राइट? एंड आप एग्जाम्पल भी देंगे कि सर जनाब बहुत ट्रिवियल चीज है जैसे कि पराठा हो गया, फ्रोजन फूड्स हो गया, अब ये किस स्लैब में आएंगे, 5% में आएगी या 18% में आएगी, इसी पे क्लैरिटी नहीं है। एंड ऐसी ट्रिवियल इश्यूज की वजह से लीगल एम्बिग्यूटीज, लीगल इशू, ये इतनी ट्रिवियल चीज है कि पराठा किस स्लैब में फॉल करेगा, हमारे लिए बहुत ट्रिवियल इशू है, बट इसकी वजह से लीगल इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, राइट? सो ये मल्टी रेट स्ट्रक्चर की वजह से कंप्लेक्सिटी अराइज हो रहा है, राइट? नाउ अगेन हम देखेंगे सेकेंड इशू है कि स्मॉल जो बिजनेसेस एंड एमएसएमईज है उन पे बर्डन क्रिएट हो रहा है। हमने देखा कैसे कि हमने एडवांटेजेस में देखा कि जीएसटी की वजह से फॉर्मलाइजेशन इंक्रीज हुआ है, टैक्स बेस बढ़ा है, राइट? फॉर्मलाइजेशन मीन्स बहुत सारे एमएसएमईज ने इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से रजिस्टर किया। बट आप सोचिए छोटे छोटे फॉर्म है, बहुत छोटे छोटे फॉर्म है, अब इनको ऑफसेट करना है। अब तक ये जो कॉपी पेन में अपना खाता मेंटेन करते थे, इनको ये ऑफसेटिंग का ही मतलब समझ नहीं आता, राइट? ये इनपुट पे कितना टैक्स दे रहे हैं, कस्टमर इनके कितना टैक्स पे कर रहे हैं, अब इसको ऑफसेट करना है, राइट? ये कंप्लायंस बर्डन, ये आईटीसी मैचिंग, राइट? अब इसके लिए इसके बाद इनको रिटर्न फाइल करना है, बहुत सारे मल्टीपल टाइम्स रिटर्न फाइल करने होते हैं। अभी छोटे छोटे फॉर्म से इनको इतनी टेक्नोलॉजी समझ नहीं आ रही है। इसके लिए क्या हो रहा है, इसके लिए इनको एक अलग से सिस्टम क्रिएट करना पड़ रहा है और साथ ही साथ एक्सपर्ट्स या प्रोफेशनल्स हायर करने पड़ रहे हैं। सो ये जो इंटायर स्ट्रक्चर है, ऑफ कोर्स इसके पॉजिटिव्स हैं, बट ये स्मॉल बिजनेसेस और एमएसएमईज पे बर्डन क्रिएट कर रहा है, राइट? एंड अगेन आप कह देंगे कि बहुत सारे एमएसएमईज कैश फ्लो इश्यूज, कैश क्रंच से स्पेशली पोस्ट कोविड एरा में डील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस एंटायर कॉम्प्लेक्सिटीज। दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट इशू कि जो जीएसटी का स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज रेवेन्यू डिपेंडेंट ऑन लिमिटेड गुड्स और सर्विसेज। अगर आप जीएसटी के स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि जीएसटी में जो मैक्सिमम रेवेन्यू है या तो सिन गुड्स से आता है या फिर हाई टैक्स लग्जरी आइटम से आता है। अगर आप देखें तो सिन गुड्स क्या है, वैसे गुड्स जो सोसाइटी के लिए कंजम्पशन के लिए सही नहीं, जैसे कि आपके हो गया टोबैको हो गया, सिगरेट्स हो गया, अल्कोहल हो गया। सो जो जीएसटी में रेवेन्यू का जनरेशन का आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो बड़ा तबका है, बड़ा एरिया है रेवेन्यू का, ये कुछ ही गुड्स पे डिपेंडेंट है, सिन गुड्स पे है। और इनमें भी आप पाएंगे, इन सिन गुड्स में भी आप पाएंगे कि अल्कोहल है, अल्कोहल जैसे प्रोडक्ट्स हो गए, ये तो बाहर रखे गए हैं जीएसटी के परव्यू से, राइट? इवन एक तो सिन गुड्स से ही रेवेन्यू हमारा आता है और इसमें भी अल्कोहल को हमने बाहर रख दिया। इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे भी जीएसटी नहीं लगता है। सो
ओवरऑल हमने जो देखा कि जीएसटी को हमने मोस्ट कंप्रीहेंसिव नेचर का हमने टैक्स कहा था, तो ये ऑल इनकम्पासिंग नहीं हो, इसलिए वहां पे हमने वो एग्जांपल दिया था कि मोस्ट ऑफ द मोस्ट वर्ड को मैंने हाईलाइट किया था कि ये इनडायरेक्ट टैक्सेस को तो सब्ज्यूम करता है लेकिन ऑल को नहीं करता है, मोस्ट को करता है, राइट। सो रिवेन्यू डिपेंडेंस है लिमिटेड गुड्स पे, सिन गुड्स एंड हाई टैक्स लग्जरी आइटम्स पे। नाउ फोर्थ इशू क्या आ रहा है कि देयर हैज बीन डिलेज इन कंपेंसेशन टू स्टेट्स। जब जीएसटी आया था, जीएसटी एक्ट इनैक्ट किया गया था, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को प्रोमिस किया था कि जीएसटी के इनैक्टमेंट से आपको जो भी रेवेन्यू लॉसेस होते हैं 5 इयर्स तक हम उसको कंपेंसेट करेंगे। बट स्टेट्स हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमें कंपेंसेशन आना था ये कभी टाइम से नहीं आता, और इसकी वजह से सेंट्रल स्टेट में क्या हो रहा है, स्टेट्स ऑलरेडी फिस्कल इशू से डील कर रहा है, सेंट्रल स्टेट में भी जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है ये स्ट्रेस्ड फेडरलिज्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। स्पेशली कोविड टाइम के बाद से, यू विल सी कोविड टाइम के बाद से और एंड कोविड के दौरान भी जो रेवेन्यू डीप स्टेट्स ने एक्सपीरियंस किया, दे फ्लैग दिस इशू कि सेंटर इज पर्पसफुली डिलेइंग द रिलीज ऑफ द कंपेंसेशन अमाउंट। सो ये एक एग्जांपल आपने काट दिया, दे दिया, आई एम सॉरी, यू नो आज मैं फंबल करूंगी एंड आई कांट हेल्प, क्लास भी जाना चाहिए। सो लास्ट वी विल डिस्कस टेक्निकल एंड ऑपरेशनल चैलेंजेस इन जीएसटी। सी जीएसटी क्या है, ये ऑनलाइन पोर्टल है, राइट। एक ही पोर्टल है गवर्नमेंट की, जीएसटी के सारे मसलों को देखना है, सब कुछ इसी के थ्रू होता है। तो स्पेशली जब सर्वर्स पीक आवर्स है, पीक सीजन है, वहां पे आपको सर्वर क्रैश देखने को मिलता है, राइट। लिमिटेड कैपेसिटी देखने को मिलती है फ्री, और स्पेशली 2017-18 में जब, क्योंकि हम इसके परफॉर्मेंस के एनालिसिस कर रहे हैं तो हम इसको कोट कर सकते हैं कि देखिए 2017-18 में तो इतना ज़्यादा ग्लिच होता था जीएसटी में कि जो डेडलाइंस होते थे उनको फ्रिक्वेंटली एक्सटेंड किया जाता था क्योंकि सर्वर की कैपेसिटी बहुत लिमिटेड थी और सब लोगों को कुछ पता नहीं था कि एग्जैक्टली करना क्या, डेडलाइन एक्सटेंड हो रहा है, कंप्लायंस टाइमली नहीं हो रहा है, फिर बहुत सारे इश्यूज होते थे। सो टेक्निक, क्योंकि ये पूरा का पूरा आईटी बैकबोन है जीएसटीएन, सो यहाँ पे हमेशा आपको इश्यूज, सर्वर क्रैशेस एक्सेट्रा देखने को मिलते हैं। सो अब हमने मेजर इश्यूज जीएसटी के वर्किंग में डिस्कस किया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अब हम रिकमेंडेशंस देखेंगे। सो मेजर्स में आपको क्या करना है, सजेशन देना है और कोशिश करनी है कि वो आपके मन की बात ना हो, वो किसी कमेटी या कमीशन या किसी स्टैट्यूटरी बॉडी के मन की बात हो, क्योंकि हमें क्या पता, राइट। एंड साथ ही साथ आप लिखेंगे कि ये करना है, साथ ही साथ ये ऐड कर देंगे कि इससे बेसिक एडवांटेजेस क्या होगा, व्हाट दिस रिफॉर्म विल बी डन। सिर्फ ये नहीं लिखेंगे रेशनलाइजेशन ऑफ टैक्स स्लैब्स, कैसे, किस कमेटी ने कहा, इससे क्या फायदा होगा, ये जब इंक्लूड करेंगे तो ये आपका 15 मार्क्स का एक होलिस्टिक आंसर बनता है। ऑफ कोर्स यहाँ जितना आप कंटेंट देख रहे हैं, जब लिखने बैठेंगे तो इसका आप बहुत कंटेंट का जो वॉल्यूम है उसको देखकर डरिएगा नहीं, जितना आप पढ़ते हैं उसका बहुत कम रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, एंड आपको आप चाहे तो ये बीच का स्किप भी कर सकते हैं, राइट। सो 10 मार्कर के लिए रेशनलाइजेशन ऑफ टैक्स स्लैब्स एज रिकमेंडेड बाय 15th फाइनेंस कमीशन, इंक्लूजन ऑफ पेट्रोलियम एंड अल्कोहल एज रिकमेंडेड बाय रंगराजन कमेटी, इतना लिख के आप बढ़ते चलेंगे। 15 मार्कर के लिए थोड़ा हमें एलाबोरेट लिखना पड़ता है। सो नाउ मूव टू मेजर्स टू स्ट्रेंथन जीएसटी डिजाइन। सबसे पहला है रेशनलाइजेशन ऑफ टैक्स स्लैब्स, राइट। 15th फाइनेंस कमीशन एंड आरबीआई ने भी ये रिकमेंड किया है कि जो एग्जिस्टिंग स्लैब स्ट्रक्चर है कि 5 स्लैब्स है, इसको आप फ्यूअर स्लैब्स की तरफ, यानी मैक्सिमम 2 कैटेगरी में, 2 या 3 में आप इसको कर दीजिए ताकि हम लिटिगेशन को रिड्यूस कर सके और कंप्लायंस जो वो इजी हो। दैट्स इट, राइट। हमने रेशनलाइजेशन में हमने बता भी दिया कि क्या करना है, 2 या 3 कर दीजिए। और किसने कमेटी रिकमेंड किया, 15th फाइनेंस कमीशन और आरबीआई की रिपोर्ट ने। और इससे बेनिफिट क्या होगा कि लिटिगेशन रिड्यूस होगा और कंप्लायंस इजी होगा। सो इस तरह से हमें अपने आर्ग्यूमेंट्स को कंप्लीट बनाना है।
कोई भी क्वेश्चन जब एग्जामिनर पढ़े तो ये नहीं पूछे कि हाउ किसने कहा, राइट, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। सो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर के माइंड में नहीं आए, ये हमारे लिए बेहतर है। इसके बाद इंक्लूजन ऑफ पेट्रोलियम, अल्कोहल एंड रियल एस्टेट अंडर जीएसटी। सबसे पहले आपको पता है कि पेट्रोलियम और अल्कोहल जीएसटी के अंदर नहीं है। रियल एस्टेट एज अ होल जीएसटी के अंदर नहीं है, ये गलत है। बट रियल एस्टेट में बहुत स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी है। कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज है जिसपे सिर्फ 1% जीएसटी लगता है, और इसमें फिर आईटीसी नहीं है, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है। कुछ क्लासिफिकेशन है जहाँ पे 5% जीएसटी लगता है, कुछ में 7% जीएसटी लगता है, एंड कुछ है जहाँ पे लेस देन 1% या फिर नहीं, राइट। सो रियल एस्टेट एज सच इंटायरली जीएसटी के बाहर है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज्यादा है। सो पेट्रोलियम अल्कोहल को अगर हम जीएसटी, रंगराजन कमेटी ने रिपीटेडली रिकमेंड किया है कि इनको आप जीएसटी के अंदर ले आइए, ताकि इससे क्या होगा, रिवेन्यू इन्हांसमेंट होगा एंड क्रेडिट चेन भी सीमलेस होगा, राइट। हमने देखा जीएसटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में इश्यूज आ रहे थे, तो विल रिकमेंड कि देखिए जीएसटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कीजिए। 19th पैक कमेटी रिपोर्ट 19th पैक रिपोर्ट 2023 ने इसने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने हाईलाइट किया था मल्टीपल फ्रीक्वेंट टेक्निकल ग्लिचेस जीएसटी के मैकेनिज्म में, और कहा, रिकमेंड किया था कि ओवरऑल आईटी आर्किटेक्चर का ओवरहॉल होना चाहिए, ताकि जो जीएसटी पोर्टल की टेक्निकल रोबस्टनेस है, सर्वर कैपेसिटी है, इस सबको क्या किया जाए, इम्प्रूव किया जा सके। तो आपने एक होलिस्टिक बता दिया क्या करना है, कैसे करना है, किसने कहा, इससे क्या बेनिफिट होगा, राइट। अगेन जो इन आईटीसी और कंपेंसेशन ड्यूज है, इनका टाइमली सेटलमेंट हो, ताकि जो एमएसएमईज है या फिर जो बिजनेसेस है, उनको जो कैश क्रंच का इशू हो रहा था, ये कैश फ्लो इंप्रूव हो सके, टाइमली कंपेंसेशन रिलीज हो, राइट। सो आप ये देख सकते हैं जीएसटी काउंसिल ने खुद रिकमेंड किया है कि जो ये पोस्ट कोविड एरा में कि फास्टर सेटलमेंट्स होना चाहिए, चाहे कंपेंसेशन ड्यूज हो या फिर आईटीसी सेटलमेंट। अगेन एमएसएमईज के लिए, क्योंकि एमएसएमईज बहुत छोटे हैं, नए हैं, आईटीसी का आपने ल्योर दे दिया, वहां तो गए, बट उनके लिए बहुत कम्प्लेक्सिटी हो रही है भाई। जो आज तक कॉपी पेन पर काम चलते थे, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता था, आपने पूरा आईटीसी पोर्टल क्रिएट कर दिया, उनको अलग से मैकेनिज्म, ये खुद इतने छोटे, और इनको इतना बड़ा एक अलग से सिस्टम क्रिएट करना पड़ रहा है, राइट। इनको प्रोफेशनल्स हायर करने पड़ रहे हैं, तो इनके लिए सिंपल जो ओवरऑल कंप्लायंस मैकेनिज्म है एटलीस्ट एमएसएमईज के लिए, इनके लिए आप सिंप्लीफाई कीजिए ओवरऑल जो पूरा का पूरा सिस्टम है। आप जो रिटर्न फॉर्म्स है इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो फाइलिंग फ्रीक्वेंसी है इसका हम रिडक्शन कर सकते हैं, राइट। ओवरऑल सपोर्ट हम इस एमएसएमईज के लिए इन्हांस कर सके, ताकि हम उनको फॉर्मल इकोनॉमी में सिर्फ इंटीग्रेट ना, हमारा पर्पस इनको सिर्फ फॉर्मल इकोनॉमी में इंटीग्रेट करके इन पे टैक्सेशन लगाना नहीं होना चाहिए, इनको स्ट्रेंथन होना चाहिए, इनको सपोर्ट होना चाहिए, राइट। जीएसटी काउंसिल ने इसके लिए बहुत सारे स्कीम्स इंप्लीमेंट किए, जैसे कि कंपोजिशन स्कीम, क्यूआरएमपी, बट इनका वाइडर एडोप्टेशन, इन स्कीम्स का वाइडर एडोप्टेशन होना, एमएसएमईज का कैपेसिटी बिल्ड होना बहुत जरूरी है। सो हमने मेजर्स भी देख लिए कि हाँ, रेशनल टैक्स स्लैब्स का रेशनलाइजेशन हो। रंगराजन कमेटी ने कहा है कि भाई पेट्रोलियम और अल्कोहल ये हाई इन प्रोडक्ट्स हैं, इनको आप इंक्लूड कीजिए ताकि रेवेन्यू इन्हांसमेंट हो सके। जीएसटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 9th पैक कमेटी रिपोर्ट ने रिकमेंड किया कि इसका सिस्टमेटिक ओवरहॉल होना चाहिए, राइट। आईटीसी और कंपेंसेशन ड्यूज का टाइमली सेटलमेंट होना चाहिए, एंड एमएसएमई को सपोर्ट कीजिए और उनका ओवरऑल कंप्लायंस सिंप्लीफाई कीजिए। सो दीज आर द फाइव मेजर्स दैट गवर्नमेंट शुड टेक टू स्ट्रेंथन ओवरऑल जीएसटी एग्जाम, और इसके बाद आप कंक्लूड करेंगे 2-3-4 लाइन्स में, दैट विल सफाइस योर आंसर। सो यस, आज टुडे आई फंबल्ड, and you know why, you are my extended family, so you should know, else आपने अगर previous classes record देखी हैं तो hardly I fumble anyway. So next class से I'll come back with more vigor, with more strength,
and with more good content and with charm and confidence. Till then, take care and thank you very much.